بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہزاروں مہینوں سے افضل رات آن پہنچی شب قدر آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ مساجد میں تکمیل قرآن کی محافل ہوں گی۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اہل ایمان مساجد میں شب بیداری کریں گے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر بتائے گا۔ جی بالکل، شب قدر جو کہ بابرکتوں کی رات ہے اور اس بابرکت رات کے مہینے کے اندر اس بابرکت رات میں جو ہے وہ قرآن پاک بھی نازل کیا گیا، اور اسی حوالے سے آج اس مبارک رات کے مناسبت سے شہر بھر کی مساجد کے اندر عبادات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری بادشاہی مسجد کو جو ہے وہ برقی کمکموں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ فیملیز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، اور اسی حوالے سے جو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو درود و سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر محفل کا بھی جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا، جس کی صدارت عبدالکبیر آزاد کریں گے، اور اسی حوالے سے جو یہاں پر آنے والے شرکاء ہیں ان کی آمد کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جوگ در جوگ پہنچ رہے ہیں، اور عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خصوصی طور پر انگلینڈ سے آئے ہیں۔ آپ انگلینڈ سے یہاں پر آئے ہیں آج مبارک رات میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ Yeah, basically this is a message for the Muslim people. Just just for the akhirat, do everything for the akhirat. You know the account in a Habib Bank is a fill up, but the account with the Allah is empty. Something send it, something towards Allah. اینڈ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا تھنک اباؤٹ کرے اور کام کرے، اور ہم جو اوورسیز پاکستانی ہم تو وہی کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی فیور میں ہو، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا ہے، اور اسی حوالے سے تمام لوگ جو ہے یہاں پر اپنے آقائے دو جہاں کو درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، اور ہر بچہ، خواتین، بچے، بڑے سبھی جو ہیں وہ اس مبارک رات میں دعائیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے توقیر، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 24واں اجلاس۔ کابینہ کی طویل ترین ایجنڈا آئٹمز کی منظوری۔ خصوصی افراد، بزرگ اور طلباء کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری دی گئی ہے۔ جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ نے پنجاب کی ایئر لائن سروس کے آغاز کی تجویز کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک چالان جرمانے کی وصولی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیگل ریفارمز کے لیے پلان طلب کر لیا۔ کابینہ کی جانب سے نئے ایڈوکیٹ جنرل امجد پرویز کی تعیناتی کا خیر مقدم کیا گیا۔ طلباء کے لیے گریڈنگ سسٹم کے لیے ورلڈ بینک سے معاہدہ سائن کرنے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانے بڑھا دیے گئے۔ نادار اور مستحق افراد کی مفت قانونی امداد کے لیے پنجاب لیگل ایڈ رولز میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں 3904 اسامیوں کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ محکمہ خزانہ کے اسپیشلائزڈ یونٹ میں خالی اسامیوں پر نئی بھرتیوں کی منظوری دی گئی۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس لاہور کے لیے 32 نئی اسامیوں کے قیام کی منظوری۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام کی منظوری۔ صوبائی کابینہ نے بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں پہلا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے کا فیصلہ۔ حکومت 81 ارب 72 کروڑ 96 لاکھ سے پلانٹ بنائے گی۔ بابو سابو پروجیکٹ جون 2025 میں مکمل ہوگا۔ منصوبے سے آبی آلودگی کم ہوگی، پانی کو محفوظ بنایا جا سکے گا۔ پروجیکٹ موٹر وے کے قریب 836 ایکڑ اراضی پر قائم کیا جائے گا۔ واسطہ افسران کروڑوں سے لگژری گاڑیاں، جدید کمپیوٹرز، موبائلز، ٹیب، فرنیچر بھی لیں گے۔ شہر میں آبی آلودگی میں کمی لائی جا سکے گی۔ سیوریج کے پانی کو صاف کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا شہر میں پہلا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے کا فیصلہ۔ 81 ارب 72 کروڑ 96 لاکھ سے بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائے گی۔ بابو سابو پروجیکٹ جون 2025 میں مکمل ہوگا۔ بابو سابو پروجیکٹ لاہور اسلام آباد موٹر وے کے قریب 836 ایکڑ اراضی پر قائم کیا جائے گا۔ بابو سابو پروجیکٹ سینٹرل سیوریج ڈسٹرکٹ، ساؤتھ سیول سیوریج ڈسٹرکٹ کا پانی صاف کرے گا۔ بابو سابو پروجیکٹ ساؤتھ ویسٹ ڈسٹرکٹ کا پانی صاف کرے گا۔ 24 کروڑ
1,99,80,000 रुपए से ज्यादा रकम गैर जरूरी अखराजात के मद में खर्च की जाएगी। वासा के अफसरान करोड़ों से लगेरी गाड़ियाँ, जदीद कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और टैब फर्नीचर भी लेंगे। वासा ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बाबू साबो में करोड़ों के गैर जरूरी अखराजात की मंजूरी मांगी है। वासिया रह के बाबू साबो प्रोजेक्ट के लिए सितंबर 2023 में 3 लाख यूरो से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया था। वासा का ख्याबान फरदोसी में सीवरेज तब्दीली का मंसूबा तजुर्बात का शिकार। पहले सर्विस लेन फिर ख्याबान जिनाह से शोक चौक कॉरिडोर पर सीवरेज डालने का फैसला किया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने ईद से कबल ही काम बंद कर दिया। वासा के कंस्ट्रक्शन डिवीजन से काम देकर ऑपरेशंस को देना महंगा पड़ गया। ना तजुर्बाकार कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रैफिक के लिए संगीन मसला खड़ा कर दिया। ख्याबान फरदोसी में सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वासा हुकाम के तजुर्बात की नजर होने लगा। पहले सर्विस लेन फिर ख्याबानी जिराह से शोक चौक कॉरिडोर पर सीवरेज डालने का फैसला किया। वासा को कंस्ट्रक्शन डिवीजन से काम लेकर ऑपरेशंस को देना भी महंगा पड़ गया। कॉन्ट्रैक्टर ने ईद से कबल ही काम बंद कर दिया। ना तजुर्बाकार कॉन्ट्रैक्टर ने बगैर प्लानिंग मेन सड़क खोदकर ट्रैफिक के लिए संगीन मसला खड़ा कर दिया। खुदाई का काम चंद मीटर ही किया गया था कि फिर अचानक काम रोक दिया। जराये के मुताबिक खुदाई के लिए काम को लेट किया गया। ठेकेदार ने चंद दिन बाद ही काम छोड़ दिया। सर्विस लेन पर इमारतों की सेफ्टी को देखे बगैर गलत प्लानिंग की गई। दूसरी मर्तबा मेन रोड को खोलने का फैसला करके फिर भी वही अमल दोहराया गया। इससे कबल शोक चौक से शौकत खानम की जानिब में डाला गया सीवरेज बैठ गया था। वासा ने सीवर डालने का काम दिसंबर में मुकम्मल करना है। 2 माह गुजरने के बावजूद 2% काम भी ना हो सका। पंजाब पुलिस में अफसरान और एहलकारों की प्रमोशन का अमल जारी है। 75 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर वार्डन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एडिशनल IG पंजाब की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड इजलास का इनेकाद हुआ। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग ने इजलास में शिरकत की। DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 सुलेमान सुल्तान राना भी इजलास में मौजूद थे। सीनियर वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में लाहौर के 44 वार्डन्स शामिल हैं। फैसलाबाद 9, रावलपिंडी 4, गुजरांवाला 8, मुल्तान के 10 ट्रैफिक वार्डन शामिल हैं। ओहदे पर तरक्की के लिए 136 से ज़्यादा अफसरान के केसेस ज़ेर गौराए। तर्जुमान के मुताबिक मेरिट पर पूरा उतरने वाले 75 वार्डन्स को ओहदे पर तरक्की दी गई है। IG पंजाब के तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद भी पेश की गई। ट्रैफिक पुलिस शाहरात पर महकमा पुलिस के एम्बेसडर रहे हैं। IG पंजाब की जानिब से कहा गया। मजीद कहा, सीनियर वार्डन जिम्मेदारियाँ फ़र्ज शनासी से अदा करें। आपको बता रहे हैं DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 सुलेमान सुल्तान राना भी इस इजलास में मौजूद थे। जबकि सीनियर वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में लाहौर के 44 वार्डन्स शामिल हैं, जिसमें फैसलाबाद 9, रावलपिंडी 4, गुजरांवाला 8, मुल्तान के 10 ट्रैफिक वार्डन्स शामिल हैं। शहर में तजावजात माफिया का राज बरकरार। मक्का कॉलोनी 7 अप पुल के अतराफ तजावजात की भरमार। फुटपाथ से 10-10 फीट आगे फल और सब्जियों के स्टॉल मौजूद हैं। मक्का कॉलोनी 7 अप पुल के अतराफ जगह जगह फल और सब्जियों के स्टॉल्स की भरमार है। राहगीरों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तजावजात माफिया की पुष्ट पनाही ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान खुद करते हैं। तजावजात माफिया रेडियाँ लगाकर अपना धंधा जारी रखे हुए हैं। फुटपाथ से 10-10 फीट आगे रेडियाँ मौजूद हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। राहगीरों ने मुतालबा किया है कि रेडी बानों को कोई मुतबादिल जगह फ्राहम की जाए। बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र इरशाद की काविशें रंग ले आईं। DG ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चैम्बर्स की तजदीद रुकनीत की तारीख में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये बड़ी अच्छी और बड़ी खबर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं और लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूज़र इरशाद की सिफारिश पर तजदीद रुकनीत की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दी गई है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूज़र इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां साहब, आपका एक और मुतालबा तस्लीम हो गया है। बहुत शुक्रिया जी। आपके चैनल की वजह से जब हमने लेटर लिखा था तो DGTO साहब ने उस पर फ़ौरन एक्शन लिया और आज उन्होंने अपना लेटर हमें जारी कर दिया है कि 20 अप्रैल तक कर लिया जाए। ये पाकिस्तान में तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि 20 दिन की एक्सटेंशन दी गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब
ऊपर तक पता है, मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है कि ईद की छुट्टियां 7-8 दिन रहनी है, तो उन्होंने बड़ी खुसूसी शफकत की है, क्योंकि हमारे लाइज़म प्राइम मिनिस्टर से बहुत अच्छा है, हमारा सदर पाकिस्तान से लाइज़म बहुत अच्छा है, मिनिस्टर साहब से बड़ा अच्छा लाइज़म है। वो यही गुजारिश करूँगा कि ये DGTO साहब और सेक्रेटरी कॉमर्स ने भी बड़ा कमाल किया है कि मुझे उन्होंने इज़्ज़त दी है, और लाहौर चैम्बर को और बल्कि पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के मेंबरान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल जी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये प्रेसिडेंट साहब का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप था, और ये अब तजदीद रुकनीत का जो मामला है ये 20 तारीख तक चला गया है। अब बिजनेस कम्युनिटी ईद के बाद बआसानी अपनी तजदीद रुकनीत करवा सकेगी और अपने वोट के लिए जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का 20वां इजलास स्टूडेंट्स के लिए बिलासूद बाइक्स फ्राहमी स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट, HEC, HD, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट और बैंक ऑफ पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम ने शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच ने बाइक स्कीम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि हज़ारों तलबा को कामयाबी से बाइक्स फ्राहम की जा चुकी हैं, मुकर्ररा हदफ के करीब पहुँच चुके हैं। मज़ीद बराह वेटिंग लिस्ट में मौजूद तलबा को भी बाइक्स के हसूल का मौका दिया जा रहा है। यतीम तलबा और तालिबात को मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद फ्री बाइक्स फ्राहम की जा रही हैं। अब यहाँ पर बात करें, सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से चेयरमैन मरकज़ी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात हुई। अमन व अमान की सूरत हाल, महकमा औकाफ के अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, महकमा औकाफ के अमूर, तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे के जज्बात के फ़रोग़ में उलमा के किरदार पर बातचीत की गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि मुल्क को अमन आमा और दहशत गर्दी की सूरत हाल का सामना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज, सिक्योरिटी इदारों और मुआशरे के हर तबके ने कुर्बानी दी है। दीन इस्लाम में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। शाफी हुसैन ने कहा कि अमन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खात्मे में मिलाने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इजलास। डॉक्टर साकिब अजीज़ ने HIV, पोलियो, जेल हस्पताल के बारे में सिफारिशात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन जहाज से कम नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज के हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म से बेहतरी आई है। वज़ीर सेहत ने कहा, HIV और हेपेटाइटिस के मरीजों की सर्जरी बारे SOPs तश्कील दिया जाएँ। ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए कि HIV का मरीज़ जहाँ भी रिपोर्ट हो उसकी इतला पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को सबसे पहले मौसूल हो। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, अस्पतालों में डिजीज़ बर्डन कम करने के लिए आवाम में फ़िज़िकल एक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का जनरल अस्पताल का दौरा। सूबाई वज़ीर ने मेडिसिन स्टोर, कार्डियक और दीगर शोबों का दौरा किया। OPD में मरीजों से मुलाकात की, सहूलियात का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने एमरजेंसी, वज़ीर आला कंप्लेंट काउंटर, न्यूरोलॉजी, पर्ची काउंटर्स, मेडिसिन स्टोर, पल्मोनोलॉजी और कार्डियक के दीगर शोबों का दौरा भी किया। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद और MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज डॉक्टर उमर इसाक भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने MS जनरल अस्पताल को सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और अद्वियात की फहरिस्तें और ड्यूटी रोस्टर आवेज़ा करने की हदायत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा से माइनॉरिटी विंग बहावलपुर के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सिंध में गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती की मजम्मत। वफ्द ने वाक़े को साजिश करार दिया, फौरी तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। उनका कहना था कि वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। ज़िम्मेदारियों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुलाकात में वफ़द ने चोलिस्तान में पानी के बहरान, शमशान घाट की खस्ताहाली और दीगर मसाइल पर रोशनी डाली। IG उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। सब इंस्पेक्टर आमिर की प्रमोशन की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हिदायत जारी की है। सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद की प्रमोशन की दरख्वास्त पर AD एस्टेब्लिशमेंट 2 रिलीफ का हुक्म दिया। गाजी कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की प्रमोशन और माली इमदाद की दरख्वास्तों पर DIG वेलफेयर और DPO उकाड़ा को रिलीफ की हिदायत जारी की। रिटायर्ड कांस्टेबल फरजंद अली की माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ का हुक्म दिया। 4 ASIs वाजिद अली, फतेह शेर नासिर, अमीर सफ्तर, मोहम्मद नवीद की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत जारी की।
सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल का सेंट्रल जेल का दौरा। पंजाब भर के जेल इंडस्ट्री में तैयार होने वाली मसनूआत की नुमाइश का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल के सेंट्रल जेल के दौरे पर IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन आसिम रजा मौजूद थे। DIG लाहौर रीजन नवीद रऊफ, जेल सुप्रिटेंडेंट एजाज असगर और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नुमाइश में सेक्रेटरी दाखिला ने जेलों में तैयार करदा कारपेट, टफ्टाइल, फर्नीचर, साबुन, फिनाइल, LED बल्ब और जूते, दस्ताने, फुटबॉल, कपड़े, ट्रंक का जायजा लिया। इस मौके पर नूरुल अमीन मिंगल ने कहा कि महकमे दाखिला कैदियों की बहाली, हुनरमंदी और उनकी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए ठोस इक़दाम उठा रहा है। तमाम जेलों के बाहर मसनूआत की नुमाइश और फ़रोख्त के लिए डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए हैं। DG ताहिर फारूक का LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेस्ट कनाल का दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर का जायजा लिया गया। DG LDA ताहिर फारूक को चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। DG ने कहा कि LDA स्पोर्ट्स कनाल वेस्ट कनाल ईद के बाद आइंदा माह ओपन किया जा रहा है। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेस्ट कनाल 40 कनाल पर स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया। DG LDA को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप में पहले आने वाले अफराद को खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप के डिस्काउंट में 10 अप्रैल तक तौसी की गई है। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेस्ट कनाल में 500 से ज़ायद मेंबरशिप की दरख्वास्तें जमा हो चुकी। DG LDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फिनिशिंग और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। मुआवने खुसूसी ज़ीशान मलिक का वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हल्का इंतखाब का दौरा। माजूर अफराद में जदीद इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स तकसीम की और मसाइल भी सुने। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला बराए सियासी अमूर ज़ीशान मलिक ने हल्के में मुकम्मल होने वाले तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इंतज़ामी अफसरान ने उन्हें मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने तरक्याती कामों के मयार को सराहते हुए मुतल्लिका हुकाम को दीगर मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर ज़ीशान मलिक ने कहा कि हल्के के आवाम से किए गए तमाम वादे बतदरीज पूरे हो रहे हैं। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, किसी पर कोई एहसान नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ हल्के के आवाम को अपने घर का फ़र्द समझती हैं। दौरे के मौके पर रुकने सूबाई असम्बली राना राशिद मिन्हास, राना खालिद कादरी, बल्दियाती नुमाइंदे और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जीवनहाना गार्डन टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट ने 200 से ज़ायद पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। तकरीब तकसीम इनामात के मुआवने खुसूसी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट ने पहली था 8वीं जमात के 200 से ज़ायद पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। तकरीब में हेडमास्टर इनामुल्लाह और आसिफ गौहर ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल किप्स कॉलेज राना आफ्ताब, तनवीर बुखारी, इसाक कमियाना, मोहम्मद सज्जाद, राना जाहिद रफ़ीक और इमरान चौकत शरीक हुए। तकरीब में बच्चों ने टैबलोज और खाके पेश करके हाज़रीन महफल से खूब दाद समेटी। उमर सुहेल ज़ियाबट ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कम सहूलियात के बावजूद अच्छे नताइज दे रहे हैं। हेडमास्टर इनामुल्लाह भट्टी ने कहा कि स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ने पर पंजाब हुकूमत हमें 2 कमरे बनाकर दे। गवर्नमेंट हाई स्कूल मार्केट टाउन के सालाना नताइज का ऐलान। प्रिंसिपल राना अल्लाह बख्श का कहना है कि रवां साल स्कूल के नताइज 95% रहे। गवर्नमेंट हाई स्कूल मार्केट टाउन के सालाना नताइज का ऐलान प्रिंसिपल राना अल्लाह बख्श ने किया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन स्कूल कौंसिल मोहम्मद सरफराज खान थे। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम भल्लर और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। मोहम्मद सरफराज खान का कहना था कि सरकारी तालीमी इदारे बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। प्रिंसिपल राना अल्लाह बख्श का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की बेहतरी के लिए असातिज़ा कराम से राबिते में रहें। फलाही इदारा एड ह्यूमैनिटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में रमज़ान राशन और ईद तोहफ़े तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। जौहर टाउन में मुनक्किदा तकरीब में 100 से ज़ायद खानदानों में रमज़ान और ईद पैकेज तकसीम किया गया। हेड ऑफ मार्केटिंग एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन अली इकबाल ने राशन तकसीम किया। रमज़ान राशन में आटा, चावल, घी, दालें और दीगर मसाला जात शामिल थे। अली इकबाल का कहना है कि हमें अपनी खुशियों में मुस्तहिक अफराद को याद रखना चाहिए। एड ह्यूमैनिटी खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद पर यकीन रखती है। आलमी यौम तब्दीक की मुनासबत से शालीमार अस्पताल में वॉक शोबा पल्मोनोलॉजी के सदरा डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान ने सदारत की। आगाही वॉक में अस्पताल की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा नोमान, प्रोफेसर मुजीबुर रहमान, आबिद भट्ट शरीक हुए। TB से आगाही के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए गए। आलमी यौम तब्दीक की मुनासबत से शालीमार अस्पताल में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक में डॉक्टर नाजिश, डॉक्टर नुमान और दीगर सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। डॉक्टर ताहा और डॉक्टर एहसानुल्लाह ने TB से आगाही के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए। तकरीब के शुरका को TB से बचाव के लिए ख़ुसूसी हिदायत भी जारी की।
اب یہاں پر خبر شامل کریں، پاکستانی فلموں کے مصنف محمد کمال پاشا کو 5 لاکھ کا امدادی چیک مل گیا۔ محمد کمال پاشا نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مدد کی اپیل کی تھی۔ محمد کمال پاشا بیماری کے باعث سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات پنجاب نے اسپتال میں کمال پاشا کی عیادت کی، جبکہ سید طاہر رضا ہمدانی نے محمد کمال پاشا کو 5 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ پاکستانی فلموں کے مصنف محمد کمال پاشا کو 5 لاکھ کا امدادی چیک مل گیا۔ محمد کمال پاشا نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42۔